بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سخت سردی، بارش اور برف باری بھی ووٹرز کا جذبہ ٹھنڈا نہ کر سکی۔ نوجوانوں کے ساتھ بزرگ ووٹرز اور خصوصی افراد کا جذبہ بھی قابل دید۔ کوئی ویل چیئر پر پہنچا تو کوئی سہارا لے کر ووٹ ڈالنے آیا۔ ووٹرز اور پولنگ ایجنٹس کو موبائل فون پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ کارکنان اپنی اپنی سیاسی جماعت کی جیت کے لیے پر امید۔ گلگت بلتستان الیکشن میں خواتین ووٹرز بھی پیچھے نہ رہیں۔ بڑی تعداد میں خواتین ووٹ کاسٹ کرنے میں مصروف۔ گھروں میں موجود خواتین کو حق رائے دہی لازمی استعمال کرنے کا مشورہ۔ گلگت بلتستان الیکشن میں 4 خواتین بھی قسمت آزمائی کر رہی ہیں۔ آمنہ انصاری پی ٹی آئی، سعدیہ دانش پاکستان پیپلز پارٹی اور مہناز بی بی JUI کی امیدوار ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کے دورے۔ پورے ریجن میں پرامن پولنگ کا عمل جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کہتے ہیں سخت سردی کے باوجود ووٹرز میں جذبہ بھرپور ہے۔ کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے دوران استور میں شدید برف باری۔ GBA 13 استور 1 کے بیشتر علاقوں میں برف باری سے ووٹرز کو مشکلات۔ اسکمل، چیچڑی، گھساٹ کے بعض مقامات پر پولنگ سست روی کا شکار۔ شگر، کھرمنگ، گھانچے میں برف باری کے باوجود پولنگ کا عمل جاری۔ سوشل میڈیا پر گلگت بلتستان الیکشن کی دھوم، ووٹرز کا جذبہ، خواتین کا ٹرن آؤٹ، پرامن ووٹنگ کا خواب سراہا جانے لگا۔ # گلگت بلتستان عمران ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ فرقہ واریت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں توہین رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے جلیل احمد شرکپوری کی قیادت میں علماء اکرام کے وفد کی ملاقات۔ پنڈی بھٹیاں موٹر وے M4 پر ٹول پلازا کا مسئلہ جوں کا توں۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں معمول بن گئیں، مسافر ذہنی اذیت کا شکار۔ ٹول پلازا پر پچھلے سفر کی رقم ادائیگی کے ساتھ اگلے سفر کی پرچی لینا لازمی قرار۔ لاہور میں موسلا دھار بارش کے ساتھ سردی کی بھرپور انٹری۔ بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوتی رہی۔ شہر پر کالی گھٹاؤں کا راج، بادل برستے رہے، اسموگ رفو چکر۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ مری سمیت پہاڑی علاقوں میں بھی بارش وقفے وقفے سے جاری۔ پہاڑوں پر برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی، سیاحوں کے مزے۔ 15 ایشیائی ممالک میں دنیا کا سب سے بڑا آزادانہ تجارت کا معاہدہ۔ آسیان ممالک سمیت چین، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ شامل۔ معاہدے کا مقصد کئی شعبوں میں ٹیرف میں کمی لانا ہے۔ اسپین میں موٹو GP ویلنسیا گراں پری کے مقابلے جاری۔ بائیکرز کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھرپور کوشش، کئی بائیکرز کنٹرول برقرار نہ رکھ سکے۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھوانہ میں جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن سسٹم کے اس دور میں بھی نوسرباز سادہ لوح عوام کو چونا لگانے میں مصروف۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانہ میں سادہ لوح عوام آئے روز نوسر بازوں کو ہتھے لٹنے لگے ہیں۔ آئے روز ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بھوانہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 185 جیمبے کے رہائشی واپڈا ملازم گلزار احمد کو بھی نوسر بازوں نے نقدی سے محروم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے گلزار احمد کا کہنا ہے کہ ان کو کراچی سے PTCL نمبر سے کال آئی ہے کہ وہ بینک کے ہیڈ آفس سے بات کر رہے ہیں، اپنے ATM کا جو پن کوڈ ہے وہ بتائیں، دیگر صورت آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا۔ جس پر انہوں نے پن کوڈ بتا دیا۔ جی انہوں نے مجھ سے پوچھا ابھی اپنا جو ATM کارڈ ہے نا، اس کا جو باہر فرنٹ پہ جو نمبر ہے نا وہ آپ مجھے لکھوائیں۔ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بلاک کرنے لگے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنا اکاؤنٹ وہ نمبر لکھوائیں۔ جب بھی میں نے ان کو نمبر لکھوائے ہیں، ان کے بعد انہوں نے
मेरे जो है ना पैसे अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, और जब मैं गया हूँ बैंक में चेक किया तो मेरे कोई पैसा 1,58,000 रुपया बैंक में मौजूद नहीं है। और बाद में उन्होंने जब अपने पैसे चेक किए तो 1,58,000 रुपए जो है वो उनके बैंक अकाउंट से जो है वो निकाले जा चुके थे। इस पर उन्होंने नौसरबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद को दरखास्त दे दी है। वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इनकी रकम जो है वो रिकवर कराई जाए। सिंध में कम उम्र बच्चियों की जबरी शादी का सिलसिला थम न सका। 13 साला सादिया की शादी रोक ली गई। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। सिंध में कम उम्र बच्चियों की शादियों का सिलसिला न रुक सका। ठुल के नवाई गांव दौड़ में गड़ी हसन थाना की पुलिस ने 13 साल कमसन बच्ची की शादी की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। 2,50,000 रुपए में फरोख्त होने वाली सादिया सरकी को निकाह के वक्त अपनी तहवील में ले लिया, जबकि 15 साल दूल्हे मोहम्मद जमान के साथ दोनों के वालिदैन को भी अपनी तहवील में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ थाना गड़ी हसन में 6 अफराद पर मुकदमा इंदराज कर दिया गया। निकाह पढ़ाने वाला मौलवी और फरार 5 अफराद की गिरफ्तारी को ताल जाहिर नहीं किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़ ठुल। साहिवाल में थाना शाहकोट के नवाही गांव में शादी से इनकार पर फायरिंग करके नौजवान ने लड़की को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल थाना शाहकोट के नवाई गांव 3414 में शादी से इनकार पर खेतों में काम करते हुए राजदा बीबी को चक नंबर 40 के बी बुरेवाला के रिहायशी शख्स गुलाम मुस्तफा ने आकर राजदा बीबी के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। इस मौके पर मौजूद खवातीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को अपनी तरफ आते देखकर गुलाम मुस्तफा ने राजदा बीबी पर फायरिंग शुरू कर दी, जो कि गोलियां लगने से मौके पर हलाक हो गई और मुलजम फरार हो गया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। साहिवाल में DPO अमीर तैमूर बुजदार की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल DPO अमीर तैमूर की खुसूसी हिदायत पर जिले भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में DSP चीचातनी सर्कल साजिद महमूद की हिदायत पर थाना सिटी के SHO मलक नदीम अनवर ने अपनी टीम के हमरा कामर्स कॉलेज के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी रकम के अलावा मोबाइल फोन बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। घोटकी बख्शापुर के प्रेमी जोड़े ने बासर वडेरे और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी बशकापुर के गांव मीर गालिब हुसैन डोमकी के रिहायशी प्रेमी जोड़े ने खानपुर महर में एहतजाज करते हुए बासर वडेरे और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर मौसमात मरियम बीबी ने मीडिया को बताया कि मैंने अपनी रजा खुशी से ढेरकी में दरगाह बरचुंडी शरीफ में इस्लाम कबूल करके घोटकी की अदालत में गुलाम दीन डोमकी से पसंद की शादी की है, लेकिन मुबैना तौर पर इलाके का बासर वडेरा और पुलिस मुझे वापस करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे शोहर और इसके वर्षा के खिलाफ के जाली मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। इधर मरियम बीबी के शोहर गुलाम दीन डोमकी ने मीडिया को बताया कि अदालती दस्तावेज बशकापुर थाने पर जमा कराने के बावजूद पुलिस मेरे रिश्तेदारों का जीना दुबर कर दिया है, मैंने किसी को अगवा नहीं किया है। मरियम बीबी ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे शादी की है। प्रेमी जोड़े मौसमात मरियम बीबी और इसके शोहर गुलाम दीन डोमकी ने मुश्तरका बयान में कहा कि हमारी जिंदगी को खतरा है, जिसकी बिना पर हम दर बदर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने आला काम से मुतालबा किया कि इलाके के बासर वडेरे और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मामले का नोटिस लेकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़ घोटकी। साहिवाल में म्यूनसिपल कमेटी चिचावतनी जना हाल में अल्लामा इकबाल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी म्यूनसिपल कमेटी जना हाल में अल्लामा इकबाल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का अनवान नस्ल नू का इकबाल था। कॉन्फ्रेंस में जहां नशीब मुनीब इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरन, डायरेक्टर इकबाल एकेडमी पाकिस्तान, प्रोफेसर बसीरा अमरीन और दीगर स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्की व गैर मुल्की स्कॉलर्स ने हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इकबाल आज की नौजवान नस्ल से किस तरह की उम्मीद रखे हुए था। इकबाल ने नौजवान नस्ल को खुदी और एतमाद का दर्स दिया है। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़ साहिवाल। सूबाई वज़ीर सिंध महकमा खुराक व अक़लियती अमूर सियासी और समाजी शख्सियात से खुशियों, रंगों और रोशनियों के त्यौहार
दिवाली पर मिल रहे हैं। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास सूबाई वजीर सिंध महकमा खुराक व अकीलियती अमूर हरीराम किशोरी लाल अपनी अवामी दफ्तर पर हल्के इंतखाबात PS47 मीरपुर खास की अवाम सीमत मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी सियासी व समाजी शख्सियत से खुशियों रंग और रोशनियों की त्योहार दिवाली के मौके पर ईद मिल रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू बिरादरी सीमत दुनिया भर में बसने वाले हिंदू बिरादरी को दिल की गहराइयों से दिवाली की शब कामना मुबारक। वतन अजीज पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी एहले वतन के साथ अपना मजहबी त्योहार आईनी यसका हकूकी के तहत मुकम्मल आज़ादी के साथ मना रहे हैं। सूबाई वजीर हरीराम किशोरी लाल का मजीद कहना था कि दिवाली जहालत और बुराई पर लाजवाल फतेह का नाम है और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमेशा पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियती अवाम के त्योहार पर खुद तकरीबात में शिरकत करके मुबारकबाद पेश करती थी। हक न्यूज़ मीरवा गुरजानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।